Praise the Lord, everyone. It is my immense pleasure to welcome you all to Mahanaim TV. Mahanaim TV पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हो. And I would like to read from the Word of God from Psalms chapter 81 verses 1 to 4. Sing aloud to God our strength. Make a joyful shout to the God of Jacob. Raise a song and strike the timbrel, the pleasant harp with the lute. Blow the trumpet at the time of the new moon, at the full moon, on our solemn feast day. For this is the statute for Israel, a law of the God of Jacob. Hallelujah! तो आइए हम उसके लिए एक खूबसूरत गीत गाएं. Let us sing a beautiful song for the glory of God and stay excited, people of God, because today you will be blessed by the word by my mother, Miss Ekta Lal, and the Lord is going to bless you. In the presence of my enemies, I raise a hallelujah, louder than my unbelief. I raise a hallelujah, my weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of this storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. And I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder in the presence of my enemies. Sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder, my weapon is a melody. Sing a little louder, heaven comes to fight for me. Sing a little louder, गम तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत.
प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको सलाम बोलती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द माइटी, मैचलेस एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल नेम ऑफ माय एंड योर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदावन के वचन को लेकर एक बार फिर से आपके बीच में आई हूँ। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड। मालूम जब भी ये मौका मिलता है कि खुदावन के वचन से आपको बरकत दे पाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम जस्ट अ मीडियम, यू नो, एक लिंक हूँ मैं कि खुदा बाप मेरे थ्रू अपने लोगों से बात करना चाहता है। आई हैव नथिंग इन मी, but when God gives me the opportunity to bring you his message, I feel myself blessed. I count myself blessed. मुझे बहुत अच्छा लगता है खुदा आपके वचन को लेकर आपके बीच में आऊं और आपसे बातचीत करूं और एक अच्छी बात से आज के दिन में आपको फिर से उत्साहित करना चाहूंगी। You know, a very small thing जिसे हम कभी कभी ओवरलुक भी कर जाते हैं। I just want to once again tell you about it, अपने आप को बताना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ, ताकि खुदावन का वचन एक बार फिर से वो बात जो हमें वो बताना चाहता है इस समय में, वो हम हमारे मस्तिष्क में, हमारे जहन में, हमारे हृदय में एक बार फिर से नक्श हो सके। लेट्स क्विकली टर्न टू द वर्ड ऑफ गॉड। आज के इस दिन में अपने वचन की ओर परमेश्वर के चलेंगे और आपके पास आपकी बाइबल्स होंगी। प्लीज टेक आउट विद मी, लेट्स टर्न टू द वर्ड एंड लेट्स टेक आउट 2 Kings, द बुक ऑफ 2 Kings एंड चैप्टर 6, द बुक ऑफ 2 Kings एंड चैप्टर 6। इसके जल्दी से 15वीं आयत की ओर चलेंगे। आई विल नॉट टेल यू द बैकग्राउंड, फिर बस इतना बता दूंगी कि इस चैप्टर में, इस अध्याय में अलीशा के बारे में बात हो रही है। अलीशा जो एलाइजा का सेवक था या एलाइजा के साथ साथ रहता था। एंड व्हेन एलाइजा वाज टेकन अवे, व्हेन एलाइजा वाज लिफ्टेड अप, अलीशा रिसीव्ड डबल पोर्शन ऑफ एलाइजा's अनॉइंटिंग। और अलीशा परमेश्वर के आश्चर्य कर्म करता था, उसकी सेवा किया करता था। ही वाज अ प्रॉफिट इन द किंगडम ऑफ इजराइल। और अलीशा के बारे में इस अध्याय में बात हो रही है कि अलीशा के ऊपर आराम के राजा ने चढ़ाई कर दी थी, क्योंकि वो चाहता था कि अलीशा को मार डाले ताकि परमेश्वर के लोगों को कुछ पता ना चल पाए, परमेश्वर की बातें पता ना चल पाए। इसलिए आराम के राजा ने, द किंग ऑफ सीरिया had besieged Elisha and his servant, and starting from verse 15 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा हुआ, भोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ उठा। फिर से पढ़ रही हूँ 15वीं आयत से। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है। द सर्वेंट ऑफ एलिशा, ही वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड ही सॉ समथिंग। और उसने क्या देखा कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। एलिशा एंड हिज सर्वेंट स्लेप्ट दैट नाइट। इट वाज ऑल गुड, इट वाज ऑल नाइस, इट वाज ऑल नॉर्मल। सब कुछ ठीक था, सब कुछ वैसे ही था जैसे वो रोज देखा करते थे। और एलिशा का टहलुआ जब अगली सुबह उठा तो उसने देखा कि बात बदल चुकी है। He saw something which he didn't expect to see, जो उसने कभी सोचा नहीं था वो उसने देखा। और उसने देखा कि नगर को एक सेना ने, घोड़ों ने और रथों ने घेर रखा है। और उन घोड़ों और रथों ने घेर रखा है ताकि अलीशा को और उसके टहलुए को मार दे। एंड he understood that my life is in danger now, my master's life is in danger now. Have you experienced that fear? Have you experienced something like this in your life, that one night you sleep, आप एक दिन सोते हैं, रात को सोते हैं, सब कुछ ठीक होता है उस रात को, और आप जब रात को सोकर सुबह उठते हैं तो बातें बदल चुकी होती हैं। Things have changed. Have you experienced that emotion कि वो रातों रात जब बातें बदल जाती हैं, you know? उस टहलुए ने, आगे वचन कहता है, तब वो टहलुआ अलीशा के पास में आता है और उसको कहता है, the response that he gives, तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। In English it says, Elisha's servant comes back to Elisha and he says, oh my Lord, what shall we do? वो इतना भयभीत हो गया, वो इतना डर गया, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो रात को बहुत अच्छे से सोया था, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो सुबह जब उठेगा
तो उसको ये दिखेगा कि मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है. He was so afraid. I am not talking about that small little fear which comes जब आपको खांसी जुकाम या शायद आपके पास कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं या जिंदगी में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है. No. I am not talking about that fear. I'm talking about that fear which comes and takes you in your grip when you least expected. मैं उस डर की बात कर रही हूँ जो आता है और आपको अपने घेरे में ले लेता है जब आप कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते हैं. आपको लगता है सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, और अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि बातें आपके कंट्रोल में से निकल जाती हैं. यू नो, I remember that night, जब वो रात मुझे याद है कि जब मेरे फादर की डेथ हुई थी. My father rested in the Lord and my husband Pastor Ashish called me that night and he said Papa has gone to be with the Lord. You know, first reaction, मेरा response क्या था उस रात को? मुझे रोना नहीं आया एकदम, मैं रोने नहीं लगी, मैं चिल्लाने नहीं लगी, मैंने कुछ नहीं किया. You know how I felt that night? मुझे ऐसा लगा, मेरे मुंह से पहला जो सेंटेंस निकला, it was Now what? Now what will I do? What will I do? मैं क्या करूंगी? पापा गए, मैं क्या करूंगी? How am I going to do things in life? मैं कैसे करूंगी? Have you experienced that fear in your life? कि कभी-कभी आप जब रात को सोते हैं सब कुछ ठीक होता है, सुबह उठते हैं सब कुछ चला जाता है. Your dad is no more there, your husband is no more there, your wife is not there. वो चले गए, वो छोड़ गए, वो रिश्ता शायद अब नहीं रहा, वो बात नहीं रही, आपकी जॉब नहीं रही. एक दिन हम सोए थे, अगले दिन सुबह लॉकडाउन अनाउंस हो गया, बिजनेसेस बंद हो गए, कुछ टाइम के बाद बिजनेसेस बंद हो गए, नौकरियां चली गई, लोग बीमार पड़ गए, एंड वी स्टार्टेड गेटिंग टू हियर ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिव थिंग्स. डर हम में आने लगा. हैव यू एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ फियर व्हिच मेक्स यू रियलाइज कि बातें आपके कंट्रोल में नहीं है? मालूम, ये इंसान का नेचर होता है. जब तक बातें हमारी कंट्रोल में होती हैं, ग्रिप में होती हैं, जब तक हम बातों को सेटल कर सकते हैं, वी फील रिलीव्ड, वी फील रिलैक्स्ड. बट द मोमेंट थिंग्स गो out of our control, we are so afraid. हमें डर लगने लगता है, हम भयभीत हो जाते हैं. That is exactly what happened with Elisha's servant. हाय मेरे स्वामी, अब हम क्या करें? अब तो हम गिर गए. There is no way out. निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है. नगर को चारों ओर से घेर लिया गया है. Now we will be killed. Now we will be destroyed. And this man who stays with अलीशा से कहता है, हाय मेरे स्वामी, अब हम क्या करें? Oh no. You wake up the next morning and you say, oh no, what am I going to do now? I don't have my job. How will I feed my children? How will I pay my bills? Oh no. हाय, अब मैं क्या करूं? But you know, ये बहुत ह्यूमनली रिस्पॉन्स है. दिस फियर इज अ वेरी नेचुरल रिएक्शन. एक बहुत ह्यूमनली रिस्पॉन्स होता है. इंसान का बहुत साधारण सा रिएक्ट करने का तरीका होता है जब उसे डर लगता है कि उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, और उसके मुंह से शायद पहला शब्द ये निकलता है, अब मैं क्या करूं? हाय, अब मैं क्या करूं? What do I do? But you know, Elisha says something. When his servant says, my master, what shall we do? Then Elisha says something. 16वीं आयत में लिखा है, उसने कहा मत डर. उसका सेवक उससे पूछ रहा है, हम क्या करें? हम कहीं से भाग सकते हैं क्या? हम किसी तरीके से इजराइल की सेना को बुला सकते हैं? हम यहाँ से कहीं से छुप के किसी बंद छुपे रास्ते से कहीं से भाग सकते हैं? कोई सुरंग है, अपनी जान बचा सकते हैं? He is coming and asking Elisha, give me a plan to save my life. Tell me something, strategize. कुछ कर मेरे स्वामी और मुझे बचा, अपने आप को बचा. But you know, Elisha says something. He's so calm, he's so composed. वो आराम से बैठा है और कहता है, अपने सेवक को कहता है, मत डर. You know, there are times in our lives, मैंने इस बात को बहुत अपने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जब बातें हमारे कंट्रोल से जाने लगती हैं, तब हमें लगता है हम इसको पकड़ लें, हम उसे रोक लें, हम किसी तरह से बातों को अपने कंट्रोल में कर लें. हम क्या करें? What should be our next move? How should we plan things? हमें क्या करना चाहिए कि हम बातों को अपने कंट्रोल में कर लें? But you know, many times when we want to know what should we do, God tells us what
not to do. जब हम परमेश्वर से ये जानना चाहते हैं कि हम क्या करें, या उसके लोगों के पास जाते हैं ये पूछने के लिए कि अब हम क्या करें, तब परमेश्वर शुरुआत पता कैसे करता है, ये बताकर कि ये मत करो, ये मत करो। और पहली चीज मालूम क्या है जो नहीं करनी है मुझे और आपको, जो हम विश्वासी हैं, we as faithfuls we should not do, that is don't be afraid. डर को अपने अपने जीवन में स्थान हमें नहीं देना। You know, we cannot take fear out of our lives. That is not possible. That is not possible. It is a very humanly emotion. ये मेरा और आपका इमोशन है, ये हमारी फीलिंग है, इसे हम निकाल नहीं सकते। We will feel fear. We will feel fear. That is normal. But you know what is not normal? To live in fear. To live in fear. It is not right for people of God to live in fear. That is why he says, fear not. That is why Elisha says, don't be afraid. Don't be afraid. Don't let fear drive you. Don't let fear tell you that you or your life is in danger. Don't let fear tell you कि आपके बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी. Don't let fear tell you क्योंकि आपका रिश्ता टूट गया है तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. Don't let fear tell you because this person has left me, I will be left alone. Don't let fear tell you that now everybody will come and make fun of me. Don't let fear tell you. डर आपको ये नहीं बताना चाहिए आके कि तुम हार चुके हो. अब डर को ये नहीं बताना चाहिए आपको आके कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है. डर को आपको ये नहीं बताना चाहिए आके कि तुम खत्म हो चुके हो. You know why? That is the reason. मैं आपको वजह बताती हूँ कि क्यों परमेश्वर कहता है मत डरो. अलीशा ने क्यों अपने टहलुए को कहा मत डर, मत डर. आगे लिखा है, अलीशा ने 16वीं आयत में पढ़ रही हूँ, उसने कहा, अलीशा ने कहा मत डर क्योंकि जो हमारी ओर हैं वो उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं. जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर है. यहाँ पर कुछ ऐसा था जो अलीशा को दिख रहा था मगर उसके टहलुए को नहीं दिख रहा था. टहलुए को दिख रहा था कि 1 और 2, यहाँ तो सिर्फ मैं हूं और मेरा स्वामी है, और मेरा स्वामी कह रहा है, my master is telling me those who are with us are greater than those who are with them. How is it possible? How is it possible? I am counting 1 2 3 4 5 6. These people are so many. इन्होंने तो नगर को घेर रखा है, मैं तो इन्हें गिन भी नहीं सकता, इनकी गिनती नहीं है, और यहाँ पर तो सिर्फ मैं और मेरा स्वामी है. And my master is seeing something. He is seeing something जो मुझे नहीं दिख रहा. You know, it is so clear. When Elisha says, you know, those who are with us are greater than those who are with them. Elisha was looking at something which his servant was not able to look at. Which his servant was not able to look at. और तब 17वीं आयत में लिखा है, तब अलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे. यहोवा इसकी आंखें खोल दे. Elisha prayed so upon his servant, O Lord, open his eyes. His servant was not blind. His servant could see. His servant could see. He was not blind. Yet Elisha prays upon his servant, O Lord, open his eyes. You know, this is what fear does to us. This is what fear does to us. जब हम अपने डर की सुनने लगते हैं, जब हम अपने भय को अपने ऊपर कंट्रोल करने देते हैं, you know, we fail to see what God has kept for us. We fail to see what God has kept for us. अगर मैं छोटा सा कोई भी एक टुकड़ा लेकर या कोई भी एक चीज, छोटी सी चीज भी लेकर कैमरे के लेंस पे रख दूंगी ना, तो मेरी पिक्चर कैमरे पे नहीं आएगी, आप मुझे देख नहीं पाएंगे. It can be a small speck which can cover the lens, but you will not be able to see me. And this is what fear does. This is what fear does. हमारे देखने को, हमारी नजर को, हमारे देखने की शक्ति को हमारा डर खत्म कर देता है. We can still see. हाँ, हम देख तो सकते हैं मालूम, मगर क्या देख पाते हैं हम? वो देख पाते हैं जो शरीर की आंखें हमें दिखाती हैं. हम ये देख पाते हैं कि हमारी जिंदगी में अकेलापन है. हम ये देख पाते हैं कि हम हार चुके हैं. हम ये देख पाते हैं कि हमारे हाथ में पैसा नहीं है. हम ये देख पाते हैं कि हम बीमार हैं या हमारे परिवार में बहुत सी मुसीबतें हैं. हम ये देख पाते हैं कि हमारे पास रोज एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी उठ जाती है. एक बीमारी नहीं जाती, दूसरी खड़ी हो जाती है. But you know
when we get afraid, we fail to see something. We fail to see that God has kept something for us. हम ये देखना भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने भी हमारे लिए कुछ रखा है, परमेश्वर ने भी हमारे लिए कुछ रखा है। और अगर आगे पढ़ेंगे तो 17वीं आयत में इस तरीके से लिखा है, तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब उसने देखा तो क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर के पहाड़, चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। क्या लिखा है वचन में? अग्नि में एलीशा के चारों ओर का पहाड़ किससे घिरा हुआ है? अग्नि में रथों और घोड़ों से घिरा हुआ है। You know, the enemy came with chariots and with horses. वो रथों और घोड़ों के साथ आए थे एलीशा को पकड़ने, मालूम, मगर एलीशा के परमेश्वर ने अग्नि में रथों और घोड़ों से उसको पहले से ही ढांक रखा था, पहले से ही उसका प्रोटेक्शन का, उसकी सुरक्षा का इंतजाम किया हुआ था। And this servant of Elisha couldn't see it because he was afraid. He wanted to do something. He wanted to take back control. वो कुछ करना चाहता था, वो बचना चाहता था, वो खुद को बचाना चाहता था, वो अपने स्वामी को बचाना चाहता था। He was right in doing this. वो गलत नहीं देख रहा था, वो गलत नहीं सोच रहा था, मगर कुछ मिस कर रहा था। And this is what I have come here to tell you. When fear overcomes you, when fear comes upon you, do not miss what God is trying to show you. You know, when fear takes control over you, do not fail to see what God is trying to show you. और जब आप वो देखेंगे ना जो परमेश्वर आपको दिखाना चाह रहा है, ये डर जो आपकी और मेरी जिंदगी में आ रहा है, ये खुद ब खुद चला जाएगा। This will go. You only have to change your focus, people of God. You only have to change your focus. You just have to see what God is trying to make you see. Do not see what the enemy is trying to do to you. उस पे नजर मत लगाइए जो आपकी परेशानी आपको करने पर आई है, आपको तंग करने के लिए आई है, आपको डराने के लिए आई है, आपको इसलिए आई है कि पकड़ कर खत्म कर दे, आपके परिवार को खत्म कर दे, आपकी जिंदगी को खत्म कर दे, आपकी सब बातों को जो आपने करी है अपने लिए उन्हें खत्म कर दे। हाँ, इसलिए वो डर आया तो है आपकी जिंदगी में, लेकिन अगर आप उस डर को नहीं देखेंगे ना, आप परमेश्वर की सुरक्षा पर अपने फोकस को लगाएंगे, this fear will not be able to do anything against you. ये डर आपको डर तो रहेगा मगर आपको डराने नहीं पाएगा। डर तो वहीं का वहीं रहेगा मगर आपको डराने नहीं पाएगा, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर की आत्मा है, आपके साथ परमेश्वर की आत्मा है। इसीलिए एलीशा ने अपने सेवक के लिए प्रार्थना करी, हे परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे। और यही प्रार्थना मैं अपने लिए और आपके लिए करती हूँ, हे परमेश्वर हमारी आंखें खोल दे। Open our spiritual eyes, O Lord, our Master, so that we may see the protection that you have encircled us with. उसने मुझे और आपको अपने एक सुरक्षा के घेरे में बांध रखा है। Yes, there is negativity in the world. Yes, things are not good in the world. You know, एक छोटे से वायरस ने हमारी लाइफ को बिल्कुल ऊपर नीचे कर दिया है। Things have gone out of our control. हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है, बातें बदल रही हैं, बहुत तेजी से बदल रही हैं, सब कुछ बदल रहा है, हमें नहीं मालूम। बहुत सी बातें हम पढ़ते हैं, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या होगा कल, हमें नहीं मालूम। यस, पीपल हैव लॉस्ट जॉब्स, उनके बिजनेसेस क्लोज डाउन हो गए हैं, कैसे लोग रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम है। इट इज सो डिफिकल्ट फॉर अस, दिस टाइम इज सो डिफिकल्ट, बट यू नो व्हाट इज अश्योर्ड, इस बात की मैं गारंटी तो नहीं ले सकती कि आपकी प्रॉब्लम्स एक ही रात में खत्म हो जाएंगी या ठीक हो जाएंगी, बट यू नो आई कैन गिव यू एन अश्योरेंस ऑफ वन थिंग, दैट इज गॉड्स प्रोटेक्शन, दैट इज गॉड्स प्रोटेक्शन। आई कैन अश्योर यू ऑफ वन थिंग, पीपल ऑफ गॉड, क्योंकि आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उसकी सुरक्षा का बाड़ा आपके चारों ओर बंधा है, उसने आपको अपने अग्नि में रथों और घोड़ों से घेर रखा है। आप उस पहाड़ पर हैं जो परमेश्वर, जहां परमेश्वर ने आपको रखा है। No enemy can bring any harm to you. No weapon that's formed against you shall prosper. ये वचन कहता है, no weapon that's formed against you shall prosper. And this is what I tell you, people of God, say it for yourself.
No weapon that is formed against me shall prosper, because I am found in the protection of God. I am found in the protection of God. दुश्मन आपका एनिमी, आपका दुश्मन, आपकी परेशानी, आपकी परिस्थिति आएगी तो रथों और घोड़ों पर, लेकिन परमेश्वर ने अग्नि में रथों और घोड़ों से पहले ही आपको घेर रखा है. I am not assuring you that your problems will be gone. I am not assuring you of freedom from your problems, but I am assuring you of your protection from God. I am assuring you today of your protection from God. एक बात करिएगा, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, ये काम मैं करती हूँ और आपको भी आज कहती हूँ कि इस काम को करेगा, इट विल ब्लेस यू, इट विल ब्लेस यू. यू नो, मेक अ सर्कल, मेक अ स्मॉल सर्कल, छोटा सा एक गोला बनाइए और उसमें लिख दीजिए मी, अपना नाम लिख दीजिए, और उसके चारों एक और थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाइए और उसमें वो सब माय फियर्स लिख दीजिए. जो बातें आपको तंग करती हैं, जो बातें आपको डराती हैं, जो बातें आपको अकेलेपन का एहसास दिलाती हैं, वो बातें जो आपको रात को अकेले में रुला देती हैं, उन बातों को उस घेरे में लिख दीजिए. जो आपको सताती हैं, जो आपको लगता है ये आई हैं और मुझे खत्म कर चली जाएंगी, उन बातों को उस घेरे में डाल दीजिए. और इन दोनों गोलों के बाद में, इन दोनों घेरों के बाद में एक और तीसरा बड़ा घेरा इनके चारों ओर बनाइए और उसमें लिख दीजिए माय गॉड प्रोटेक्ट्स मी. और उसके नीचे लिख दीजिए whatever surrounds me, my God surrounds it. Whatever surrounds you, your God surrounds it. जिन बातों ने आपको घेर रखा है, परमेश्वर ने पहले ही उन बातों को घेर रखा है. No weapon that's formed against you shall prosper. Don't be afraid. Don't be afraid. जैसे अलीशा ने अपने टहलुए को बोला, अब परमेश्वर भी आपको एक बात बोलता है, मत डर. Don't be afraid, for those who are greater, those who are with you are greater than those who are with them. Open your eyes. Open your eyes, people of God. See what God wants you to see. Change your focus. Change your focus. उन बातों से जो आपको डराती हैं, अपना फोकस हटाकर उन बातों पर लगा दीजिए जो परमेश्वर ने आपसे कही हैं, जो परमेश्वर ने आपसे कही हैं. And He is there to protect you. Whatever surrounds you, your God surrounds it. Whatever surrounds you, your God surrounds it. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face shine upon you, and may He be gracious to you. May He be gracious to you. खुदा बाप आपको बरकत दे, आपको संभाल कर रखे. May His grace and may His peace be always upon you. Praise the Lord, hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो. And I believe that you are blessed by the word of God this day. परमेश्वर ने आपको छुआ है, उसने आपको बरकत दी है, और उसने एक बार फिर मुझे और आपको ये आश्वासन दिया है. उसने एक बार फिर मुझे और आपको ये बता दिया है कि वो मेरे और आपके साथ में है. उसने कहा है वो मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ेगा. और आज के इस वचन से जो मैंने और आपने एकता के द्वारा सुना है, मैं विश्वास करता हूं मैंने और आपने एक बार फिर से इस बात को थाम लिया है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है. देयर इज नो नीड टू फियर. डर को अपने ऊपर राज्य मत करने दीजिए. लेट नॉट फियर रूल यू, बिकॉज यू आर रूल्ड बाय गॉड हिमसेल्फ. हालेलुया. इसलिए परमेश्वर का वचन 23 ज़बूर में कहता है, 23 साम में लिखा है, इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, वर्स 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Hallelujah. मैं किसी प्रकार से डरने वाला नहीं हूं. कोई डर मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर तू मेरे साथ में है. तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है. तेरे होने से मुझे आश्वासन मिलता है. तेरे होने से मैं हियाव बांधता हूं. तेरे होने से आई बिकम करेजियस लॉर्ड, बिकॉज यू आर देयर विथ मी. यू आर होल्डिंग माई हैंड. यू आर टेकिंग मी ऑन द राइट पाथ. मेरे अपने रास्ते तो गलत हो सकते हैं, लेकिन जब मैं तेरे बताए हुए रास्तों पे चलता हूं तो सब कुछ आसान होने लगता है, सब कुछ अच्छा होने लग जाता है, क्योंकि परमेश्वर तू मेरे साथ में है. परमेश्वर
परमेश्वर का यह वचन आपको बहुतायत से बढ़ के बरकत देने पाए। मैं आपके लिए दुआ करने वाला हूं और मुझे विश्वास है जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का यह वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं अच्छे और मुबारक दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं खूबसूरत वचन के लिए जो आज के इस दिन में हमने एक बार फिर से सुना। तेरा वचन हमारे जीवन में कार्यगत होने पाए मेरे प्रभु, ताकि तेरे वचन को सुनने के द्वारा और उस पर अमल करने के द्वारा हमारा जीवन परिवर्तित होने पाए। ये डर हमारे जीवन से हमेशा के लिए निकलता चला जाए मेरे प्रभु, और हम हियाव बांधते चले जाएं, हम करेजियस होते चले जाएं, ताकि हम तेरे अंदर और पेबस्त होते जाएं और मजबूत होते जाएं, तुझ में और दृढ़ होते चले जाएं, ताकि हमारा ये जीवन, हमारे परिवार का जीवन, हमारे परिवार के एक एक सदस्य का जीवन तेरे अंदर महफूज पाया जाए। अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरा वचन हम सबको बहुत बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. Please take good care of yourself, and we are going to meet you once again on next Sunday, and I believe that the Lord is going to speak to you from his word, and Lord is going to bless you through a beautiful song. May the Lord bless you.